So, welcome so much once again. I wish everyone a very wonderful good afternoon to all of you. So, seeing all the enthusiasm in you all and seeing all the excitement, I am very glad to once again invite you at the second meeting with our second resource person, that is Mr. Arun Kumar. He is having this wonderful meeting with a wonderful topic, that is happy teachers make happy environment, or happy classes. That means if a teacher is not happy, how can he create so delightful and happiness in your classes? So to make you all happy and to make the students happy, a teacher has to become happy, because a happy classes can learn or teach or encourage the whole society, can nurture the world, can do anything. A happy person creates happiness around him, and he shows the positive life skills in yourself and the lifestyles also. So it is very important for a teacher, for any learner, to be happy. So I invite Mr. Arun sir for his wonderful topic. Welcome. I, Arun Kumar, your resource person, today training on the topics happy teacher makes a happy classroom. Good afternoon to the principal ma'am, our manager sir, ST, MC sir, and all concerning staff. First of all, teacher. What is teacher? Teacher shows a path on which students have to go. And it is depend upon the teacher how to make a good student. So, teacher is known as a nation builder. In these topics, we describe how the happy teacher makes a happy classroom. As we know that teacher is a nation builder, teacher makes a foundation of a country. So, as a teacher, the idea of creating a happy classroom is normally at the top of our agenda. And you have to know that as the staff will command the satisfaction of finishing a pile of making and joy of finding the missing blue leads. What teachers simply want is for children to be happy. You have to know that यदि शिक्षक खुश नहीं रहेंगे तो कैसे जो एक बच्चे को जो शिक्षा देते हैं, जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें वह फ्लुएंसी नहीं आएगा, वह से नहीं आ पाएगा जो कि वह अपने अंतर्मन से चाहता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किसी को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम अपने बच्चों को, अपने पालने को एक नवीन जीवन की ओर अग्रसरित करते हैं, तो सबसे प्रथम यह होता है कि हम खुश रहें, और सबसे बड़ी प्रथम यह होता है कि हमारा दायित्व क्या है। शिक्षक का शाब्दिक अर्थ, शिक्षक का अर्थ होता है गुरु, और गुरु मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अपने बच्चों को अग्रसरित करे, वही शिक्षक कहलाता है, वही टीचर कहलाता है। But how can we create a happy classroom? That is the main question. How can we create a happy classroom? What can you put in the place to ensure that the happiness of everyone, you included, is put into the place? Well, thanks. And to our happy created school program, and we have got a few tricks up our sleeves to help you. Why is creating happy classroom necessary? तो कहना है कि कैसे हम हैप्पी क्लासरूम क्रिएट कर सकते, कैसे हैप्पी क्लासरूम बना सकते हैं।
तो स्वाभाविक तौर पे इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारे ऐसी भावनाएं आती है, बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिसको हम अपने बच्चों के सामने रखें, बच्चों के अंदर में समावेश करें, बच्चों के अंदर भरे, तो निश्चित तौर पर जो कुछ हम प्रदान करना चाहते हैं, जो कुछ हम अपने बच्चों को देते हैं, वह निश्चित तौर पर उसमें वह जो 100% नहीं तो 99% बच्चों में यह चीज जाएगा। लेकिन उसका एक उचित माहौल होना चाहिए, उचित तरीका होना चाहिए, है ना, जो कि हम प्रदान करें। अब आता है कि इसके लिए देखा गया कि 1919 में, है ना, in August 1919 the annual good childhood report from Children's Society found overall happiness among the 15 years olds had dipped below the age of scale of 1 to 10। यानी कहता है कि आपको 2019 का जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसमें दिखा रहा है कि 10 बच्चों का प्रोग्रेस में 8 बच्चा जो है वो डिप हो रहा है, यानी उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वह क्या हुआ, उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, बच्चा खुश नहीं है, अपने क्लास में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा है जो विकास करना चाहिए। तो यह बहुत बड़ी चीज होती है कि शिक्षक कैसे इस विकास को प्रदान करे, कैसे शिक्षक उस बात को रखे ताकि अपने बच्चा जो है वह विकसित करे, बच्चा जो है उसको अपने दिमाग में रखे। उसमें दिया गया, उसमें एवरेज जो निकाला गया, दैट द एवरेज इज 7.89। Nearly 5% of those survey report happiness score and below 5 out of 10, which equates the approximately 219,000 children in the being unhappy in the life of whole. This report significant happiness with the school in 2016 and 17. So the report says that as the society we have start to taking children well-being more seriously and equates we are the prime position. First of all, you have to know that we are the prime position. We are the teacher, so we are the prime position, and it is depend upon me and you also that you create a happy classroom. How you ways to create a happy classroom? First, provide support. That means provide support का मतलब होता है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट देने का मतलब होता है कि जब आप शिक्षा देने जाते हैं, जब आप अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए। कोई ऐसा टॉपिक्स आता है उसको डिस्क्राइब कीजिए और ऐसा डिस्क्राइब कीजिए, ऐसा चीज रखिए उसको विभिन्न माध्यम से। जैसे कहने का मतलब हुआ कि जब कोई टॉपिक है तो ऐसा माध्यम अपनाइए जो कि उसके अंदर मन में जाए, बच्चा उससे ज्यादा से ज्यादा अनुग्रहित करे और अपने अंदर में रखे। दूसरा आता है सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट एंड सक्सेस। दैट इज द मेन थिंग्स कि यदि कोई बच्चा सफल होता है, यदि कोई बच्चा जो है किसी तरह किसी भी प्रतियोगिता कोई भी ऐसा चीज होता है जिसमें कोई बच्चा सफल होता है तो आप उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट का मतलब होता है क्या कि उसको उसकी प्रोत्साहन, उसकी जो सफलता में आप उसको एक उल्लास के रूप में मनाएं ताकि बच्चा जो है वह उस बात को अपने अंतर मन में रखे। और बच्चा जब हमेशा याद रखिएगा कि किसी आप अपने पर सोचिए कि यदि कोई काम करने जाते हैं और आपके अंदर में यदि उल्लास की भावना नहीं रहेगा, यदि आपके अंदर में कोई ऐसा भावना नहीं रहेगा तो आप वह चीज को 100% नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह ही हमारे नौनिहाल जिसको हम अपनी शिक्षा से अनुप्रेरित करना चाहते हैं, हम उनको मार्ग प्रशंसित करते हैं तो उसके अंदर में उल्लास भरने का काम सर्वप्रथम हमारे जैसे शिक्षकों का है। अगला जो है टीचिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मदृढ़ता। आप बच्चों में यह रखिए कि वह आत्मदृढ़ है, जिसका एक साधारण सा मैं कहानी के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक बच्चा जाता है एक गुरु के पास ज्ञानार्जन करने के लिए। गुरु बहुत विद्वान रहते हैं,
बच्चा जाता है और उसे कहता है कि गुरुजी अमुक व्यक्ति ने हमको बोला कि आपके यहाँ अध्ययन करना है, हमको ज्ञान करना है। गुरुजी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। वो आप व्यक्ति को मैं बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ऐसा समझा, फिर भी जाओ मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। लेकिन बच्चा जो है वो बहुत संकल्पित रहता है और वह गुरु को पकड़ लेता है पैर को और कहता है कि मैं जब तक कि आप ज्ञानार्जन नहीं दीजिएगा, ज्ञान नहीं दीजिएगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। परिणाम क्या होता है, गुरु विवश हो जाते हैं। तो कहते ठीक है, ऐसा करो कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बगीचा है, उसमें जाओ और देखो। क्या तुम देखिए उसमें, क्या देख कर आओ क्या है। पहली बार जाता है, वो देखता है कि एक बगीचा है, उसमें पोखरा है, तालाब है, आता है, बताया था कि नहीं कुछ नहीं देखा, तो फिर जाओ देखने के लिए। फिर जाता है, फिर देखता है कि उसमें पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा हरे भरे हैं। उसको देखता है पुनः, वहां जाने के पश्चात पुनः आता है, वो गुरु जी को बताता है। तो कहते हैं ना कुछ नहीं देखा, फिर जाकर देखो। इस तरह बार बार उस बच्चों को भेजते हैं। और जब वो आता है तो वह कहता है कि गुरु जी वह जो वाटिका था उसमें इतना ज्यादा मनोहारी दृश्य था। उस जगह की जो तालाब था उसमें जो पक्षी जो है वो कलरव नृत्य कर रहे थे, वहां पर जो है वो अलग भाव दिखा रहे थे। तो गुरुजी ने बोला कि बताओ ये सब मैंने तुम्हें बताया? तो बोला कि नहीं गुरुजी आपने नहीं बताया। तो कैसे प्राप्त किया? तो तुम अपनी लगनता से, तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने अंदर आत्मदृढ़ता से प्राप्त किया। तो यह सबसे बड़ी चीज होती है। यदि बच्चा आत्मदृढ़ हो जाए, बच्चा यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना से ग्रसित हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर ज्ञानार्जन कर सकता है। यह बहुत बड़ी जो टॉपिक्स है। अगला टॉपिक जो है बिल्ड पॉजिटिव है ना रिलेशनशिप। अब आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसके और हमारे बीच एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें सकारात्मक का मतलब होता है कि हमारे और उसके बीच में एक ऐसा भाव होना चाहिए ताकि बच्चा उसको एक, हमें शिक्षक के साथ साथ अपना एक अभिभावक समझे। और यह जिस समय हो जाएगा हमारे और बच्चों के बीच में, तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा, है ना। और हमारे जो अभी जो सीबीएसई का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस शिक्षा को माध्यम को विकास करने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, इसमें बहुत ही बड़ी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव जो सकारात्मक जो सोच है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस समय के समय में। अब आता है जो डेवलपिंग कॉपिंग स्किल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चों में किसी न किसी, आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी गुण से अपने आप में एक अलग भाव रखता है। हर व्यक्ति हर एक ही चीज में नहीं। कोई बच्चा जो है बहुत पढ़ने में तेज होगा, तो कोई बच्चा किसी खेलने में तेज होगा, कोई बच्चा कुछ न कुछ में होगा। तो यदि हम उसके स्किल को समझ जाए, यदि उसकी उस भावनाओं को समझ जाए, तो स्वाभाविक तौर पर उसका उसी क्षेत्र में हम विकास करेंगे। और उसका उसी क्षेत्र में विकास करके न केवल अपने विद्यालय का, बशर्ते कि पूरे देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा का भाव आता है हमारे शिक्षा के नए शोध में। तो मुख्यतः यह जो 5 टॉपिक्स है, तो 5 टॉपिक्स को यदि हम अपने अंदर में पढ़ेंगे तो मैंने इसके बाद जो प्रत्येक टॉपिक को फिर से डिस्कस करना शुरू करता हूं। जो आता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट, क्रिएटिंग अ सपोर्ट नेटवर्क कैन हेल्प टू बिल्ड हैप्पीनेस in the classroom from the friends, family and adult with the school. And children should realize that and they can important people to them and to when and they need them. यानी कहने का मतलब यह हुआ, यदि बच्चा अपने अंदर में यह भाव भर लेगा कि जो शिक्षक बता रहे हैं वह आपको सही तौर पर बता रहे हैं, सही ढंग से बता रहे हैं, सही ढंग से वह उसकी गार्जियन के तौर पर है, उसको एक सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हर भाव में आगे बढ़ रहे हैं, मैंने बढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें शिक्षा का भाव बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक्स and they have important people to turn to when and they need them and feeling lonely and weak and now where
and a time can do much damage to children mental health and well-being. यदि आप बच्चों में इस मेंटलिटी को नहीं लाइएगा, यदि उसको प्रोवाइडिंग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा कि बच्चा जो है मेंटली, फिजिकली और हेल्थ तीनों तरह से वह उसको विकास नहीं हो पाएगा। मेंटली का मतलब हुआ क्या कि मस्तिष्क के तौर पर, मस्तिष्क यदि शिक्षा को ग्रहण करने के समय में सबसे बड़ी चीज होती है कि मस्तिष्क का विकास। तो मेंटली जो सपोर्ट जो होता है वह भी हमारा दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है कि किस प्रकार जो है वो बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों के सभी विकास के लिए हम किस तरह का ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा जो है वह विकसित हो सके, है ना। नेक्स्ट जो है सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट एंड सक्सेस। Celebrating achievement and success is very important for anyone. Celebrating individual and group achievement can do much to भाव बढ़ेगा, और इसके साथ साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे ताकि हर बच्चा उसके प्रति बनने का भाव रखेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप जब भी कोई बच्चा कुछ करता है, कुछ अलग करता है क्लास में, कुछ एक अलग भाव दिखाता है, तो हम शिक्षकों का यह दायित्व होता है कि आप उस बच्चों को किसी तरह से प्रोत्साहित करें, उस बच्चों को, जैसे साधारण सी बात है कि यदि कोई बच्चा को किसी तरह का उल्लास की भावना होती है, जो हम लोग स्कूल में भी करते हैं, जैसे आप असेंबली में देखते हो किसी बच्चे का, है ना, जन्मदिन रहता है, तो हम क्या करते हैं कि असेंबली ग्राउंड में उस बच्चों को बुलाते हैं और उसके जन्मदिन का एक तरह से एक सेलिब्रेशन के रूप में उसको सभी बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे क्या होता है? उससे यह होता है वो बच्चों के अंदर में वो भावना बढ़ता है और बच्चा अंतर मन से उल्लासित होता है, और जब बच्चा अंतर मन से उल्लासित होगा तो हमारी शिक्षा का सही भाव जो है उसके अंदर बढ़ेगा। बच्चों को सही ढंग से, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का यह बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उसके हर तरीकों से उसके आंतरिक विकास करें ताकि वह सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त कर सके। ना केवल एक बच्चा, बशर्ते कि क्लास में, मान लिया मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे की जो बच्चा है तो हम ये ध्यान देंगे ये छोटा बच्चा जो क्लास में सबसे कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन हम यदि उसके अंदर में उल्लास की भावना बढ़ेंगे, यदि हम उसके अंदर में यदि छोटी से छोटी जो कमियों को उजागर करने के बाद और उस कमी को दूर करते हुए कुछ ऐसी चीज आता है, एक ऐसा भाव आता है जिसको कर हम उसको उत्साहित करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वह उस ओर बढ़ेगा जिसको हम कामना करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी हैव शोन and that reward and recognition can go and to long way up to boosting people confidence and moral। यानी जितना भी अध्ययन किया गया है, आज आप जितना भी अध्ययन देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जहां पर अध्ययन के आधार पर देखा गया कि जहां पर यदि आप किसी को उल्लास भरते, किसी को प्रोत्साहित करते, किसी को उपहार देकर माने उसको हौसला अफजाई करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें विकास होता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट, टीचिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैन इंक्रीज हैप्पीनेस बट इट कैन नॉट समथिंग we are all naturally born with, for many of us it is learning a skill that and improves with age, experience and practice। सबसे बड़ी बात होता है कि हम लोग प्राकृतिक तौर पर जन्म लेते हैं और जो है कॉन्फिडेंस जो होता है हर व्यक्ति में अलग होता है। तो साधारण सी बात है कि जो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो अभ्यास से आता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वह एक्सपीरियंस से आता है। साधारण सी बात है कि बहुत ही साधारण भाव देते हैं कि यदि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो यदि आपको कहीं पर खड़ा कर दिया जाए, एक बच्ची को, एक व्यक्ति को किसी असेंबली में खड़ा कर दिया जाए और यदि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वह एक शब्द का वर्णन नहीं कर सकता,
है ना। तो कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े IAS का एग्जामिनेशन होता है, IPS का एग्जामिनेशन होता है, उसमें साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार का मेन भावना यह होता है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का अवसरित करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति में आ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वह सब कार्य कर सकता है जिसकी कामना हर व्यक्ति करते हैं। A happy classroom in branches this journey that provide opportunities for the children and to learn this skill in their own time with the support of those around them. यदि आप हैप्पी क्लासरूम करते हैं, हैप्पी क्लासरूम का मतलब होता है कि क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जो वर्णन करते हैं, तो ऐसा आप चित्र वर्णन करें, ऐसा चित्र वर्णन करें जिसमें क्लास का माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाए। यदि एक शिक्षक क्लास में जाए और एक क्रिएटिव टाइप का व्यवहार को दिखाए, हमेशा जो है वह शिक्षक जो है वह अपने व्यवहार को में निरंकुशता को दर्शाए, तो स्वाभाविक तौर पर बच्चों में वह विकास नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित तौर पर उसका क्लास शांत रहेगा, लेकिन वह शिक्षा का भाव नहीं जाएगा जिसकी आज का शिक्षा जगत चाहता है। इसलिए सबसे प्रथम चीज है कि आप जो है बच्चों में एक क्लासरूम जो बनाते हैं उसमें क्या करें, एक हैप्पी क्लासरूम का एक माने खुशनुमा क्लासरूम बनाने की कोशिश करें और एक खुशनुमा माहौल को बनाए ताकि बच्चे जो है वह सही ढंग से जो भी शिक्षक जो प्रदान करते हैं उसको प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। Having positive relationship with peers and adults within the school can do much when creating a happy classroom. अब देखिए क्या करना है, यदि आप हैप्पी क्लासरूम बनाएंगे, हैप्पी क्लासरूम बनाएंगे, यदि करेंगे मतलब क्या होगा, एक खुशनुमा क्लासरूम बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, उसमें उसके अंदर सकारात्मक भावना अपने आप जगेगा, है ना। सकारात्मक भावना होने के कारण क्या होगा कि बच्चे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको बताए हुए भाव को समझेंगे और आपको बताए हुए भाव को समझेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हर उस ज्ञान को अर्जित करेंगे जो कि वह देना चाहते हैं। अब आता है कि मुख्यतः आप ध्यान देंगे कि हर व्यक्ति, हर बच्चे जो है वो उस भावना सकारात्मक सोच के साथ नहीं आते हैं, सकारात्मक सोच उसके अंदर नहीं रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 100 लोग जो सकारात्मक सोच के साथ रहता है ना, तो उस सकारात्मक सोच को लाना, सकारात्मक सोच को मतलब उजागर करना, सकारात्मक सोच को हमारे बीच में रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शिक्षकों के लिए। So providing a continuously happy positive environment within can contribute heavily and to their overall happiness। यानी क्या करने का मतलब यह हुआ कि आप एक ऐसे environment की रचना करें, एक ऐसे वातावरण बना जिसमें क्या हो सकता है कि बच्चों के अंदर में एक खुशनुमा माहौल बने। हैप्पी एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बच्चों को उस तरह से, जैसे कहने का मतलब है कि यदि कोई टॉपिक से वर्णन करते हैं और उसको वर्णन करने के बाद एक साधारण सी बात है कि यदि हम हिंदी में पढ़ाने जाते हैं और हिंदी में पढ़ाने गए और हम हिंदी का कोई टॉपिक को माने पढ़ाना, कहानी को बता रहे हैं, तो हिंदी तो आप जानते होंगे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि कुछ नहीं है। वो आपको जब ऐसे केवल हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चे को क्या होगा, आधा सारा बच्चे जो कान से सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप खाना खाइए, खाना में देखिए कि थोड़ा सा अलग अलग चीज का व्यंजन रहेगा तो उसकी खाना का महत्ता बढ़ जाता है। उसी तरह का यदि आप क्लासरूम में जाते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और उस सब्जेक्ट पर एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा उस चीज को आप माने प्रस्तुत करते हैं, एक अलग एक ऐसा उदाहरण जिसके द्वारा बच्चे जो है वह बच्चे को मनोरंजित करते हुए उस उदाहरण को प्रस्तुत करे तो स्वाभाविक तौर पर वह फायदा होगा जो कि आप चाहते हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ी बात होती है कि सर्वप्रथम कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव जो चीज आते हैं, पॉजिटिव माने जो भाव रखते हैं, तो यह प्रथम चीज होता है कि शिक्षक को भी पॉजिटिव थिंकिंग में रहना पड़ेगा।
पॉजिटिव थिंक का मतलब क्या है कि जब आप क्लास में जाए तो उस समय एक अलग सोच होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में पहले से आपको यह होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि आप जाए तो 100 आउट ऑफ 100 उस बोर्ड को उतार दे, उस बोर्ड को प्रस्तुत कर दे, ताकि वह बच्चा जो है उसको अनुग्रहित कर सके। और इसके लिए क्या होगा, सबसे प्रथम यह चीज है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तभी जाकर यदि आप पॉजिटिव सोच रखिएगा तभी क्लास का पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं, अपने कक्षा को पॉजिटिव सोच में ला सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था इट इज डिपेंड अपॉन द टीचर हाउ टू मेक अ गुड स्टूडेंट। यू आर नेशन बिल्डर, आप राष्ट्र निर्माता है, आपको निर्भर करता है कि आप बच्चों को कैसे बनाते हैं। तो एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए टीचर के अंदर भी। अब अगला आता है डेवलपिंग टॉपिक स्किल। लाइफ इज नॉट फेयर, डिसीजन एंड सिचुएशन राइज अप एंड आर आउट ऑफ आवर इमीडिएट कंट्रोल। आप जानते होंगे कि लाइफ जो है, जीवन जो है, इतना एकदम साधारण नहीं, जीवन संघर्षमय है और हर समय हर क्षण एक अलग भाव से, हर अलग भाव में ग्रसित रहता है। जैसे आप देखोगे इसी साल में हमारे यहाँ देखिए, हमारे देश में हमारा देश जो जिस बीमारी से या महामारी से या कहीं कहिएगा कि फेस किया है, जिसको कहते हैं कोरोना। और कोरोना काल ने जिस प्रकार शिक्षा को मारा है, शिक्षा को पतन के मार्ग की ओर ले गया है, तो उसमें सबसे बड़ा चीज है हमारे टॉपिक्स हैप्पी टीचर क्रिएट्स हैप्पी क्लास। आज कोरोना काल में बच्चे विद्यालय से दूर गया तो उसको एक सकारात्मक सोच, एक खुशनुमा माहौल और पढ़ाई के प्रति एक अलग भाव नहीं रखेंगे तो वह इस सोच की तरफ अग्रसरित नहीं होगा और शिक्षा का वह भाव नहीं आ पाएगा जितना तक जो कि हर शिक्षक चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि है कि हमारा दायित्व है कि हम अपने नौनिहाल को एक ऐसा मार्ग प्रदान करें, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करें ताकि उसका जीवन जो है वह भाव को प्राप्त करे, वह जीवन जो है उच्च गोल को प्राप्त, उच्च जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे जो है वह उच्च से उच्च लक्ष्य को प्राप्त करे, तो यह हमारा दायित्व होता है। तो बताया था आपको कि चिल्ड्रन कैन फाइंड एंड दिस वन ऑफ द लाइफ इज टफेस्ट लेसन। बच्चे जब अध्ययन करते रहते हैं तो उस समय देखते हैं कि उनका जीवन जो बहुत ही कठिन है और स्वाभाविक तौर पर शिक्षा अर्जन, शिक्षा ग्रहण करना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और उस समय जो है यदि आप उसी खुशनुमा माहौल नहीं प्रदान करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वह चीज हो जाएगा, बच्चों में वह भाव आएगा कि उसका जीवन जो है वह एकदम टॉपिस्ट होगा। तो मैं इन्हीं चीजों पर अपने वो शिक्षक बिंदु है, शिक्षक जो गण है, उन पर एक छोटा सा मैं एक विस्तृत वर्णन चाहता हूं। आदरणीय रोशन सर प्लीज। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत अलग और अनूठा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी टीचर्स मेक्स हैप्पी क्लास। अगर बात किया जाए हैप्पीनेस के बारे में तो ये हैप्पीनेस यानी खुशी है क्या, सही मायने में देखिए तो कहता क्या है कि कुछ लोग जो है उनको गाना सुनने में खुशी होती है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खेलने में खुशी होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल फोन वगैरह चलाने में खुशी होती है। तो दुनिया में या फिर कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचर लवर है, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनको बारिश को देखने में मजा आता है। कुछ लोग हैं जिनको फूल बगीचा अच्छा लगता है, जिनको फूल बगीचा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो दुनिया में जैसा तरह का इंसान है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर किसी इंसान से अगर बोल दिया जाए, कह दिया जाए कि आपको भाई क्या पसंद है, अगर किसी अपने मोहल्ले के आसपास के नेबर्स के अड़ोस पड़ोस के लोग से पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, तो वो कहेगा कि मुझे मेरे पड़ोस के या फिर अपने बचपन के दोस्त लोग मेरे आसपास जो रहती है उसके साथ बैठ करके बात करने में मजा आता है, ये पसंद है, ठीक है। कुछ लोग घर पे होना पसंद होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि किस इंसान, हर जैसा इंसान है, ठीक है, हर इंसान अलग अपनी तरह की चीजों में खुशी ढूंढता है।
तो ये जो टॉपिक है इसमें कहा गया है इस चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए कि जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जो भी अपने आसपास समझते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चों के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, कि उनको खुशी किस बात में मिलती है और जिस बात में, जिस चीज में उनको खुशी मिलती है, हम उसी चीज के माध्यम से या उसी माध्यम से उनको पढ़ाएं तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो शायद वो बेहतर समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बच्चे को स्टिक से पढ़ाइए, मार पीट के पढ़ाइए, डांट डपट के पढ़ाइए, नहीं, पढ़ाने का बहुत तरीका हो सकता है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि प्यार से बेहतर तरीका दुनिया में कुछ भी नहीं है किसी बच्चे को पढ़ाने का, ठीक है। और जब आप बच्चे के साथ, अगर आप उसके साथ घुल मिल करके उसको उसके माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो जितना उसके दिमाग में जाता है उतना वो डर से उस चीज को उतना बेहतर नहीं समझ पाता है, ठीक है। जो चीज आप खुशी से अपना सकते हैं वो किसी के डर से या भय से नहीं अपना सकते हैं। अगर आप किसी डर और भय से किसी चीज को अगर अपनाते हैं तो वो कुछ समय तक आपके पास रहता है, कुछ समय तक उनके अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज को प्यार से, मन से, खुशी से किसी चीज को अपनाइएगा तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगा और आप उसकी भी कदर करेंगे और वो चीज जो आपके साथ होगी वो भी आपकी कदर करेगी। इसीलिए हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। हम अपने क्लासेस को खुशनुमा बनाएं, अपने बच्चों को खुशनुमा बनाएं, उनको खेल खेल में पढ़ाएं, सिखाएं, ठीक है, और खेल खेल में बहुत सारी चीजों का उनको अनुभव दें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लासेस को खुशी बनाइए और हैप्पीनेस क्रिएट कीजिए। बस, थैंक यू। व्हाट डू यू, अरुण सर? बहुत ही सुंदर बात अभी आदरणीय डॉक्टर सर ने जो प्रस्तुत किया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर में कुछ न कुछ गुण होता है। मैंने पहले बताया था बच्चों के अंदर में एक बहुत ही बड़ा चीज होता है, उसको खोजना चाहिए और उस खोज कर और उसी के क्षेत्र में उसको माने अग्रसर करना चाहिए। और यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत बड़ा दायित्व है हमारे शिक्षक पर। शिक्षक को बार बार कहा जाता है कि आप चाहो तो एक मूक व्यक्ति को, एक जो मुक्त करने का मतलब यह हुआ जो व्यक्ति जो है ज्ञान से मुक्त हो, ज्ञान से एकदम अज्ञानता के भाव से हो तो कहां से कहां चला जा सकता है। तो आप चाहो तो उसको एक ज्ञान के प्रकाश में लाकर और एक बहुत ही ऊंचा जगह पर ले आ सकते हैं। जैसे आप देखोगे एक साधारण उदाहरण है ना, उंगलीवाल के बारे में। तो उंगलीवाल को जब गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश मिला तो एक वो अपना डाकू छोड़कर एक नया है ना एक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा, है ना। रत्नाकर डाकू, आप सुने होंगे, रत्नाकर डाकू को जब ज्ञान का भाव, ज्ञान का प्रकाश मिला तो उस रत्नाकर के अंदर में ज्ञान का भाव था, लेकिन उनको समझाने का कोई नहीं था, कोई उनको एक सही गुरु नहीं मिला, उसको सही एक भावना नहीं मिला। और जब उसको भावना मिला, है ना, तो क्या बना, महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दिया। तो यह बहुत ही बड़ी चीज होती है कि यदि उसके सही माहौल प्रदान हो जाए, सही माहौल मिल जाए तो वह व्यक्ति उन शिखर की ओर अग्रसरित हो सकता है जिसकी कामना हर एक माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के समय में करते हैं। तो इसी बिंदु पर, है ना, दीपक सर डिस्कस दिस टॉपिक। Okay. According to my point of view, if a teacher wants to make a classroom happy, then first of all he has to know the way how to motivate the student. If he don't know how to motivate the student, then he never make a classroom happy. After that, he know also the way how to attract the student. Normally we have to interact the student not personally but professionally. Normally हम लोग अभी 21 सेंचुरी में हैं, तो वी हैव टू यूज दैट टाइप ऑफ स्किल टू एंटरटेन द स्टूडेंट। नॉर्मली हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में ना बात करके नॉर्मली हम अपने टॉपिक को इंटरटेनमेंट के कॉन्सेप्ट से जो बच्चों को पढ़ाएं, देन वो बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरटेनमेंट के तौर पर बच्चे जितना कुछ सीख पाते हैं वो नॉर्मली बुकिश लैंग्वेज से नहीं सीख पाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को अभी बहुत सारे चीज 21वीं शताब्दी में हम लोग को बहुत सारी चीजें मिली है जिससे हम बच्चों को नॉर्मली इंटरटेन करके लिए पढ़ा सकते हैं। ऐसा नॉर्मली हमारा ऑनलाइन स्टडी हो गया, स्मार्ट क्लासेज हो गया,
लाइब्रेरी हो गया, लैब्स हो गया, ये सारी चीजों का अगर इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत हद तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम लोग अभी तक अपने पुराने कंसेप्ट पर चलेंगे कि बस क्लासरूम में गए और नॉर्मली बस बुक का खोले और पढ़ाना स्टार्ट किए, लेकिन वही हो जाएगा, बच्चे फिर बोरिंग फील करेंगे। इसलिए वी वांट टू, अगर हमें अभी स्टूडेंट को पढ़ाना है, अभी के स्टूडेंट को दिन हम लोग को 21 सेंचुरी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी बच्चे इंटरटेन होकर नॉर्मली सीख पाएंगे और नॉर्मली लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू। First assignment, how to create a healthy classroom. How to create a healthy classroom. How do we provide a support to increase how do we provide the support to increase the lifestyle of the child? Third question. How do we build a positive environment? What is the means of healthy classroom? How do you support the support to how do you support to gain the goal of the child? And you have to do this assignment, and after that you have to, and when you did this assignment, after that you have to submit and in our school, and so I call our STMC sir, Mr. Roshan sir, to please come and say something. Sir, Roshan sir, please come. So thank you once again, Arun sir, for this wonderful topic, that is happy teachers make happy classroom. So I told you what happiness is and what happiness can do. What is the power of happiness? We should, when we will try it in our classes, then we will see it. And I request all the teachers to do it practically and think. When they apply these things in their classes, what they gain or what is the change that they feel. I would also like to request some teachers so that when they will do those positive changes, when they find any positive changes, they just share their experiences to us so that we could be able to know that what you gain from these resources and what you gain from these trainings, and so that what has been changed in the role of teaching and what has been created by you. So once again, I will show you once again. Okay, just like previous, you will be provided with these feedback forms, come attendance, come assignment forms, and
you can just fill these forms and you can just in this form there is the your names, designation, topic of the training, okay, and the resource person. And there is also a space provided for the questions what you have been given in the assignment, and then afterwards you have to fill the answers, okay. And after all there is a feedback, and rest of the place has been left for the schools and the other things. So just you can get these forms soon and you will fill this, okay. So with this, after filling the form, your session will be over and you can submit it to the school, okay. Thank you.